we started our 7th chapter from literature portion, and in that previously we completed phonic words, then chapter reading, and then we completed understanding portion, है ना? And today we will start our vocabulary portion that is given on page number 93. So today we will do vocabulary and practicing grammar exercise. So in vocabulary you will learn about materials. What? Materials. Now what are materials? So materials are the things that are used to make something. यानी कि मटेरियल्स जो होते हैं वो ऐसी चीजें हैं जो हमें कुछ ना कुछ चीजें बनाने में यूजफुल होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सी बुक. ये बुक है ये. ठीक है. सो इट इज मेड अप ऑफ पेपर. सो पेपर इज ए मटेरियल. सो मटेरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं? दैट कैन बी पेपर, ग्लास, wood, plastic, steel. Okay, so these are the materials that we see commonly around us, and most of the things are made out of these materials. कौन कौन से हो सकते हैं materials? Paper, wood, glass, plastic, steel. Okay, so most of the things that we see around us are made up of these materials. So क्या होते हैं materials? Let us quickly revise. Materials are the things that are used to make something, है ना? So and I gave you one example with the book. So this is a book and it is made up of paper. So paper is a material. Now we will see some more examples. Okay, see. Now this is, what is this? This is scissor. So in this you can see that scissor. So this portion is made up of steel. देखो ये क्या है? स्टील का बना है. और ये आपको दिख रहा है? This is the black one. This it is made up of plastic. See, this is made up of steel and this is made up of plastic. Okay, kids. Then let us see some other example. What is this? This is pencil. क्या है ये? पेंसिल है. तो देखो पेंसिल किस चीज की बनी है? वुड की. यस, देखो ये आपको दिख रहा है ना ब्राउन पोर्शन. सो इट इज मेड अप ऑफ वुड. ठीक है. देन व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्केल. ये भी क्या है? स्केल है. सो इट इज मेड अप ऑफ स्टील. देखो ये क्या है? स्टील का बना हुआ है. सो स्टील, प्लास्टिक, वुड, दिस ऑल आर मटेरियल्स. नाउ सी, ये दिस यू विल लर्न इन हायर क्लासेस दैट व्हाट इट इज, बट राइट नाउ सी इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. ठीक है. ये किस चीज का बना हुआ है? प्लास्टिक. सो प्लास्टिक इज ऑल्सो अ मटीरियल. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग. सी व्हाट इज दिस? दिस आर स्पेक्स. क्या है? These are specs. See, it is made up of glass. ये क्या है? देखो ये glass है. And see this frame, ये वाली. Okay, not this one, the black one. It is made up of plastic. Okay, this is glass and it is plastic. So all the things that we see around us, all the different things that we see around us, they all are made up of some types of materials. Okay, and the common materials that we see around ourselves is paper. That we on daily basis that we use. So plastic, then wood. See wood कहाँ पे देखते हो आप? Where do you see wood? All your furniture is made up of wood. Your sofa, your bed, your doors, these all are made up of wood. है ना? Then the books that you read from, those all books are made from paper. है ना? Yes. Then yes, bat. The every day that you play cricket, है ना? That bat is also made up of wood. Then the pencils, the eraser, sharpeners. There's the sharpeners that you use.
they also are made up of plastic, right? Then bucket that you take bath with the help of bucket, it is also made up of plastic. So we all are surrounded by different materials and the things that are made from those materials, right? Yes. So this our vocabulary is all about that. So let us quickly revise what are materials. So materials are the things that are useful, that are used to make something, like paper, wood, then plastic, okay, glass, so steel, these all are materials. Okay kids, now open your textbook and we will see our textbook exercise. Okay, so materials, vocabulary, materials. So here you have to write CW and today's date. Okay kids, so let us start. The 3 little lamps use different materials to build their houses. यानी कि जो 3 लिटिल लैम्प्स थे उन्होंने क्या किया था, अपने हाउसेस बिल्ड करने के लिए डिफरेंट मटेरियल्स चूज किए थे, डिफरेंट मटेरियल्स पिक किए थे, है ना। तो कौन कौन से थे वो, नेम देम। तो चलो, तो सबसे पहले तो क्या किया था उन्होंने, स्ट्रोस। सो फर्स्ट लैम्प ने क्या सिलेक्ट किया था, स्ट्रोस। सो STRAWS, स्ट्रोस, ठीक है, स्ट्रोस। देन दूसरा वुड, WOOD, वुड। दूसरे लैम्प ने क्या चूज किया था, वुड। और जो थर्ड लैम्प था उसने ब्रिक्स, यस। सो यहाँ पे BRICS उसने चूज की थी ब्रिक्स, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मटेरियल्स क्या होते हैं, मटेरियल्स यानी कि ऐसी थिंग्स के जो हमें किसी भी चीज को बनाने में हेल्प करे, मतलब कि जो किसी भी चीज को बनाने में वो यूजफुल हो, तो उसे कहते हैं मटेरियल्स। ओके, ऑल द थिंग्स वी सी अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। यानी कि आप हमारे आसपास देखो तो सारी ही चीजें क्या होती है, किसी ना किसी मटेरियल से वो बनी हुई होती है ना। सो सी, रीड some more examples. So see, here a girl is saying the table is made of wood. देखो, ये जो हम टेबल होता है, जैसे कि आपके घर में भी होगा, है ना, वो टेबल होता है, वो किससे बना होता है, वुड से बना है। The wood is smooth, और ये जो वुड है वो कैसा है, स्मूथ है। ओके, then here a boy is saying the scissors, यानी कि सीजर, ठीक है, जिससे हम पेपर कट करते हैं, सीजर्स आर मेड ऑफ स्टील। और जो सीजर्स होती है वो किससे बनी हुई होती है, स्टील। स्टील यानी कि वो एक मटेरियल होता है। आपने देखा है, आपने सीजर्स देखी है, तो उसमें जो ग्रे कलर का होता है ना, मतलब जिससे आप पेपर कट करते हो, है ना, वो स्टील होता है, ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ स्टील। द स्टील इज शाइनी, यानी कि चमकीला, शाइनी यानी कि चमकीला, है ना। जो स्टील होता है वो कैसा होता है, शाइनी यानी कि चमकीला। ओके, नाउ टर्न योर पेज। नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज ऑफ आवर वोकैब्युलरी। सो इन दिस, लुक एट द पिक्चर्स। Each object is made of some material. Write the names in suitable sections. अब हमें क्या करना है, देखो, सबसे पहले तो लुक एट द पिक्चर्स, यानी कि यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं वो हमें देखने हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, देखो, ईच ऑब्जेक्ट, ये जो सारे हैं उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी कि चीजें। तो ये जो हर चीजें हैं वो इज मेड ऑफ सम मटेरियल,
यानी कि जो चीजें हैं वो कोई ना कोई मटेरियल से बनी है। राइट द नेम्स इन सुटेबल सेक्शंस। तो हमें क्या करना है, देखो ये सेक्शंस दिए हैं। वी हैव 4 सेक्शंस ओवर हियर, वुड, प्लास्टिक, ग्लास एंड पेपर। वुड यानी कि लकड़ी, जो लकड़ी की चीजें बने हो वो। प्लास्टिक यानी कि जैसे कि आपके घर में जो बकेट होती है, ठीक है, बकेट है, फिर पेन है, सो वो जिससे बनी होती है वो प्लास्टिक। देन ग्लास, जो कांच के ग्लासेस होते हैं हमारे घर में, ग्लास की चीजें होती है ना, कांच ऊपर जो टेबल पे लगा हुआ होता है, सो दैट इज ग्लास। एंड पेपर, यू ऑल नो व्हाट इज पेपर, है ना। देखो अभी क्या बुक में भी ये क्या है, पेपर है। तो बाय दैट वी हैव 4 सेक्शंस। अब यहाँ पे जो हमें ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, यानी कि ये जो हमें थिंग्स दी है, वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वो किस मटेरियल से, यानी कि वुड से, प्लास्टिक से, ग्लास से या तो पेपर से बनी हुई है। एंड देन वी हैव टू राइट देम हियर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ये क्या है, विंडो। व्हाट इज दिस, विंडो। तो विंडो किससे बनी, विंडो है वो किससे बनी हुई होती है, ग्लास। यस, वेरी गुड। सो इस विंडो को हम ये ग्लास वाले कॉलम में लिखेंगे। सो विंडो को यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे। सो WINDOW, विंडो। ओके, सो ग्लास में क्या लिखेंगे, विंडो लिखेंगे। अब क्या है देखो, तो दूसरा ऑब्जेक्ट स्विच। क्या है ये, स्विच, जो हम हमारी लाइट्स, फैन को ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, वो स्विच। सो स्विच किस मटेरियल की बनी होती है, प्लास्टिक की। यस, अपने घर में भी देखना, प्लास्टिक की। सो यहाँ से हम स्विच को कट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे। सो SWITCH, स्विच। ये क्या है, स्विच। इसमें टी जो है वो साइलेंट है, यानी कि वो नहीं बोलेगा। हम यहाँ पे उसे लिखेंगे लेकिन वो अब खुद को बोलेगा नहीं, यानी कि वो साइलेंट रहेगा। सो स्विच, ठीक है। नाउ अभी ये क्या है, कोम्ब। कोम्ब, सो कोम्ब किस चीज का बना हुआ होता है, किस मटेरियल का, अगेन प्लास्टिक। यस, प्लास्टिक का। सो इस प्लास्टिक वाले कॉलम में हम लिखेंगे कोम्ब। सो COMB, कोम्ब, ठीक है, प्लास्टिक। सो इन प्लास्टिक वी हैव टू राइट कोम्ब। देन एनवलप। एनवलप यानी कि जिसमें हम लेटर को पोस्ट करते हैं, जो लेटर्स होते हैं उसे हम पोस्ट करते हैं, वो एनवलप। क्या है ये, एनवलप। एनवलप, तो एनवलप जो होता है वो किससे बना होता है, पेपर का। यस, सो यहाँ से एनवलप को कट करेंगे और इस पेपर वाले कॉलम में लिखेंगे। सो यहाँ पे आएगा एनवलप। सो ENVELOPE, एनवलप। ओके, यस। नाउ पेंसिल। पेंसिल, तो पेंसिल देखो किसकी बनी है, वुड की। किसकी बनी होती है ये, लकड़ी की, है ना। सो पेंसिल को यहाँ से हम कट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, किस वाले कॉलम में, वुड वाले में। सो PENCIL, पेंसिल। ओके, नाउ गिटार। ये क्या है, गिटार है, देखो तो, गिटार। सो गिटार है वो किस चीज से बना हुआ होता है, वो वुड से बना हुआ होता है ना। तो गिटार को यहाँ से हम कट करेंगे और यहाँ वुड वाले कॉलम में लिखेंगे। सो गिटार कैसे लिखेंगे, GUITAR,
guitar. Okay. Now मैग्नीफाइंग ग्लास. ये क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास. अब आपको पता है मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? ये जो छोटे छोटे राइटिंग होते हैं ना, उसे बड़ा कर देता है. इससे हम छोटी छोटी चीजें देख सकते हैं. ठीक है. फिर वो क्या करेगा? उसे बड़ा कर देगा, जिससे हम छोटे राइटिंग्स भी अच्छे से पढ़ सकते हैं. सो ये किसका बना हुआ होता है? किस मटेरियल से बना हुआ होता है? ग्लास का. देखो ये रहा यहाँ पे ग्लास. सो हम यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास. ओके. सो यहाँ से लिखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास. ओके. सो मैग्नीफाइंग ग्लास को यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास. नाउ कार्ड. ये देखो ये क्या है? बर्थडे कार्ड है ना. ये हम किसी का अगर बर्थडे हो तो उन्हें देते हैं ना. यस. सो वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है? पेपर. यस. सो यहाँ से कार्ड को कट करेंगे और यहाँ पेपर वाले कॉलम में लिखेंगे. सो यहाँ पे लिखेंगे कार्ड. सो CARD card. Okay. Now we will see remaining pictures. So कबर्ड. ये क्या है? कबर्ड है ना, जहाँ पे हम अपने क्लोथ्स होते हैं, शूज हो, कोई भी चीजें हो, वो रखते हैं. तो वो किस चीज से बना हुआ होता है? वुड. यस. सो यहाँ से कबर्ड को कट कर देंगे और यहाँ वुड वाले कॉलम में लिखेंगे. सो कबर्ड. CUPBOARD. ओके. कबर्ड. देन बटन्स. ये क्या है? बटन्स. यानी कि हमारे शर्ट में वहां पे बटन्स लगे हुए थे, देखो ऐसे, वो. सो दे आर मेड फ्रॉम plastic. Yes. So in this plastic column we will write buttons. So सबसे पहले यहाँ से कट कर देंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे. So BUTTONS. So buttons. Okay. And then the last one, toilet roll. ये क्या है? टॉयलेट रोल है. और टॉयलेट पेपर, जो कि टॉयलेट में रखा जाता है. तो फिर वो भी किस चीज से बना हुआ होता है? विच मटेरियल का? पेपर का. सो यहाँ से टॉयलेट रोल को कट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे. सो TOILET टॉयलेट रोल. ROLL. ओके. सो TOILET टॉयलेट रोल. ROLL. Okay kids, now we will move towards practicing grammar exercise. So in practicing grammar exercise we have is, am, are, है ना. तो हमने हमारे लैंग्वेज लीडर में ये सीखा था. तो हमने उसमें क्या सीखा था कि हम is कहाँ पे यूज करते हैं? is used with he, she, it और a noun, यानी कि he, she और it. एंड कोई भी वन नाउन, यानी कि जो 1 इन नंबर हो, उसके लिए यूज होता है, उसके साथ यूज होता है is. ठीक है. देन am, तो वो हमेशा I के साथ यूज होता है. यानी कि जब हम खुद के बारे में बात कर रहे हो उस टाइम पे हम I के साथ क्या यूज करेंगे? am. एंड देन are. तो are किन के लिए यूज होता है? तो are उन प्रोनाउंस के लिए यूज होगा जो है you, we, they. और वैसे नाउन्स के लिए जो मोर देन 1 हो, है ना. सो सी, we use am with I. सो I के साथ am. We use is with he, she, it. और अ नाउन, यानी कि ही, शी और इट के साथ
इज यूज होगा। और जब कोई नाउन यानी कि जो नेमिंग वर्ड है वो कैसा हो, अ नाउन यानी कि वन नाउन, तो उसके साथ भी इज यूज होता है। एंड देन वी यूज आर। ये जो आर है विथ यू वी दे, यू वी दे प्रोनाउंस के साथ आर यूज होता है। एंड नाउन्स इन मोर देन वन, और वैसे नाउन्स जो कि मोर देन वन है। ओके, नाउ वी विल सी अवर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। सो सी क्वेश्चन 1, fill in the blanks using is, am और are। यानी कि यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी है, जो ये खाली जगह है, वो हमें is, am और are से फिल करनी है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ ए। अनु डैश इन द स्विमिंग पूल। तो चलो, अनु यानी कि ये नाउन है वो मतलब वन ही है। सो वन नाउन जब हो तब हम क्या यूज करते हैं, इज, है ना। यस, सो अनु, और तो फिर यहाँ पे आएगा इज। अनु इज इन द स्विमिंग पूल। ओके, यानी कि अनु जो है वो स्विमिंग पूल में है। नाउ बी, द स्कूल बेल डैश लाउड। तो कि जो स्कूल की बेल है, तो ये भी कितने हैं, वन इन नंबर। सो यहाँ पे क्या आएगा, इज। यस, सो यहाँ पे हम लिखेंगे इज। द स्कूल बेल इज लाउड। देन सी, आई डैश नॉट वेल। सो हम आई के साथ, आई वाले मतलब प्रोनाउन है, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, एम। यस, सो यहाँ पे हम लिखेंगे एम। आई एम नॉट वेल। ओके, आई एम नॉट वेल। देन डी, बर्ड्स डैश इन द स्काई। अब देखो, ये जो नाउन है बर्ड्स, तो वो कितने हैं, मोर देन वन, है ना। दे आर मोर इन नंबर। सो मोर देन वन के लिए हम क्या यूज करेंगे, आर। यस, सो बर्ड्स आर, यहाँ पे आएगा आर। बर्ड्स आर इन द स्काई। देन ई, वी डैश अ टीम। तो वी, जब भी वी प्रोनाउन हो तब हम क्या यूज करेंगे, आर। यस, सो यहाँ पे हम लिखेंगे आर। सो वी आर अ टीम, यानी कि हम सब एक टीम है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज। नाउ एफ, रोहन एंड तरुण डैश फ्रेंड्स। सो हियर रोहन एंड तरुण, यानी कि ये जो नाउन्स है वो मोर देन वन है ना। तो मोर देन वन हो जब नाउन्स, तो क्या यूज करेंगे, आर। यस, सो यहाँ पे हम लिखेंगे आर। सो रोहन एंड तरुण आर फ्रेंड्स। नाउ जी, these children dash in the playground। भी देखो, यानी कि चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन है तो मोर देन वन, है ना। अगर चाइल्ड होता तो वन, और चिल्ड्रन है तो मोर देन वन। सो चिल्ड्रन मोर देन वन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। सो ए आर ई आर। These children are in the playground. Now H, the tiger dash in the den। अब क्या है, टाइगर। टाइगर्स नहीं है, क्या है, टाइगर। सो टाइगर है तो वन इन नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज, है ना, क्योंकि जब वन नाउन हो, सिर्फ एक ही नाउन हो, तो वहां पे हम इज यूज करते हैं। सो द टाइगर इज इन द डेन। नाउ आई डैश
अब यहाँ पे आपको एट ऐड करना है, एट होम। सो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम, यस। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एम, आई एम एट होम, यानी कि मैं घर पर हूँ, ओके। एंड देन लास्ट वन जे, माई फादर डैश एन इंजीनियर। अब माई फादर, तो कितने नाउन्स है यहाँ पे, ओनली वन नाउन है ना, अ नाउन। सो जब वन नाउन हो तो इज, यस। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इज, माई फादर इज एन इंजीनियर, ओके किड्स। Now question number 2. Make 5 different sentences using the words or phrases from all the columns in the table. Now what we have to do is, here you can see that 5 dashes are given to us, okay, and we have to make 5 different sentences, यानी कि हमें कोई भी relevant sentence बनाना है with the help of words and phrases, ठीक है, that are given in these columns. So यहाँ पे हम कोई भी sentences बना सकते, but there should be relevant sentence. Okay, so let us start with the first one. See, सबसे पहले हम ये I से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हमें ये I लेना है, फिर उसके साथ जो is, am और are जुड़ेगा वो लेना है, ओके। तो चलो, तो I के साथ हमेशा क्या आता है, am। सो पहले तो हम उतना लिख देंगे, I am, ठीक है, I am। तो अब इसमें से हम अब I am at the farm भी लिख सकते हैं, on a bus भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि दूसरों के साथ दूसरे सेंटेंसेस भी हमें बनाने हैं, सो अभी हम बनाएंगे I am angry, ओके। सो I am angry। सो फिर यहाँ से हम angry लिखेंगे, and then full stop, ओके। I am angry, ठीक है, ओके। देन सेकेंड वन क्या है, ये माई फ्रेंड, ठीक है। तो पहले तो ये माई फ्रेंड यहाँ पे लिख देंगे, माई फ्रेंड। सो सी कि हमेशा जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, इट आइदर स्टार्ट्स विथ अ प्रोनाउन, यानी कि क्या तो प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, या तो फिर नेमिंग वर्ड्स के, नेमिंग कोई भी नेमिंग वर्ड हो उससे स्टार्ट होता है। फिर वो किससे जुड़ेगा, इज, एम या तो आर से, ठीक है। तो चलो, माई फ्रेंड, सो माई फ्रेंड है तो फिर क्या आएगा, इज, यस, क्योंकि 1 इन नंबर है ना, फ्रेंड ही है, फ्रेंड्स नहीं है। सो एम तो नहीं आएगा क्योंकि वो तो हमेशा एम के साथ ही आई के साथ ही जुड़ता है। सो या तो इज आएगा या तो आर, 1 इन नंबर है तो इज। सो माई फ्रेंड इज, सो यहाँ से हम इज लिखेंगे, ठीक है, माई फ्रेंड इज। अब इसमें से हमने एंग्री तो कर दिया है, ठीक है, तो इसे यहाँ से कट कर देंगे। फिर सो ये से तो नहीं हो सकता ना, माई फ्रेंड इज रेनी टूडे, नो, दैट इज नॉट रिलेवेंट। माई फ्रेंड इज सो स्लीपी, हाँ वो हो सकता है। देन माई फ्रेंड इज ऑन अ बस, हम वो भी लिख सकते हैं। और माई फ्रेंड इज एट द फार्म, सो आई थिंक द मोस्ट रिलेवेंट इज माई फ्रेंड इज एट द फार्म, ठीक है। सो हम वो लिखेंगे। सो यहाँ से एट द फार्म को कट कर देंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे माई फ्रेंड इज एट द फार्म, FARM, farm, okay. So my friend is at the farm. अब नेक्स्ट वन, आई हो गया,
माई फ्रेंड भी हो गया। अब इट क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे इट। इट के साथ क्या जुड़ेगा, is, yes, so it is. The most relevant is rainy today, so it is rainy today. So यहाँ से rainy today को कट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे it is rainy, so RAINY, rainy today. Okay, don't worry if it is not visible, मैं इसकी जो PDF है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो यहाँ से भी इट तो हो गया, तो वो कट कर देंगे। देन कम्स वी, क्या है ये, वी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वी, तो और वी के साथ क्या जुड़ता है, आर, यस, सो वी आर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर। वी आर ऑन अ बस, ठीक है, ऑन अ बस। सो ऑन अ बस को यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑन अ बस। सो वी आर ऑन अ बस। ओके, एंड द लास्ट वन, द डॉग्स। अभी देखो डॉग्स है यानी कि मोर देन वन, तो सबसे पहले तो यहाँ पे डॉग्स लिख देंगे, द डॉग्स, ठीक है। तो फिर उसके साथ क्या जुड़ता है, आर, यस, तो यहाँ से आर को यहाँ लिखेंगे। ओके, सो द डॉग्स आर, फिर यहाँ क्या बचा, सो स्लीपी, सो यहाँ से स्लीपी को कट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे SO, सो स्लीपी, SLE, that is EENP, why, sleepy, the dogs are so sleepy. Okay kids, so this is all about today's class work. So today we did vocabulary and practicing grammar exercise. Now we will see today's homework. Okay, so this is your today's homework. Okay, that is on page number 96. So this you have to do in your homework. तो इसमें क्या करना है, let us discuss that. So in writing portion you have describing places, ठीक है, क्या है, describing places. अब see, describing places यानी कि कोई भी प्लेस होती है लाइक स्कूल, हाउस एक्सेट्रा, तो वो आपको क्या करना होता है, ड्रॉ करना है, एंड देन यू हैव टू गिव आंसर्स टू सम क्वेश्चंस, एंड सम क्वेश्चंस वुड बी गिवन टू यू, एंड देन यू हैव टू गिव आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस सो दैट यू कैन डिस्क्राइब इट, ठीक है, ताकि आप उसे डिस्क्राइब कर सको. सो सी हियर यू कैन यू सी दिस व्हाइट स्पेस. See, yes, so here in this you have to draw your dream house, यानी कि आप जैसा भी हाउस चाहते हो वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. And then see, here some questions are given, so you have to answer these questions to describe your dream house. So see, our first question is, where do you want your home to be? यानी कि आपको आपका घर कहाँ पर चाहिए, ठीक है, या तो फिर कहाँ चाहिए. सो कैसे हम, अब आपसे देखो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है ना. सो यहाँ यू यूज हुआ है, बट व्हेन यू गिव आंसर एट दैट टाइम यू हैव टू यूज आई वॉन्ट माई होम टू बी. जैसे कि अगर कहीं पर सिटी में चाहिए तो सिटी का नेम आपको लिखना है, लाइक इन राजकोट, इन मुंबई, इन कोलकाता. वैसे अगर कोई हिली प्लेस पे चाहिए सो, और या तो फिर कोई माउंटेन पे चाहिए तो देन यू कैन राइट आई वॉन्ट माई होम टू बी ऑन टॉप ऑफ द हिल. ओके, सो इन दिस मैनर यू हैव टू गिव आंसर. देन क्वेश्चन 2, सी, what material would you use
to build it. यानी कि हमें अगर हमारा होम बनाना है तो हम किससे बनाएंगे, ठीक है। तो जनरली हमारा होम जो होता है वो ब्रिक्स, सैंड, सीमेंट से भी बना हुआ होता है। यस, वन मोर थिंग यू कैन डू इज ट्री हाउस। सी, अगर आप किसी ट्री हाउस पे अपना घर बनाते हो, लाइक सी इन दिस दैट आई वांट माय होम टू बी ऑन अ ट्री, तो अगर वो ट्री पे है तो फिर ऑब्वियसली वो किससे बनेगा, वुड से। So then here you can write I would use wood to build it, ठीक है। अगर आप पक्का हाउस बनाते हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वन बनाते हो, स्ट्रॉन्ग हाउस, then you can use bricks, sand, cement, stones. But if you are building a tree house, then you need wood. Okay. Then how many rooms do you want? अब आपको कितने रूम्स चाहिए? So I want this many, that is dash rooms. अगर आपको 4 रूम्स चाहिए तो यहाँ पे आप 4 लिख सकते हो। अगर 5 रूम चाहिए तो आप यहाँ पे 5 लिख सकते हो। So I want dash rooms. So 4, 5, 3, whatever number of rooms you want. Then fourth, what would you do in those rooms? So what would you do? So I would dash in those rooms, like study, I will play. So I would play in those rooms, I would study in those rooms. So by this you can complete this answer. Okay. Now fifth question, the last one. Who do you want to live with? That is कि आप किसके साथ रहना चाहते हो? So your answer must start with I. I want to live with. Well, obviously that is with parents, with family, right? So I want to live with my family or my parents. ठीक है। सो जिससे भी आप, जिसके साथ भी आप वहाँ पे रहना चाहते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। सो दिस इज योर टुडेज होमवर्क। ओके किड्स, सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय।